अच्छा बेटा, this is question number 8 of 2022, my paper 1. In figure 3, shows a sketch of the outline of the face of a ceiling fan viewed from the below. ठीक है ना, ये एक सीलिंग फैन है. Obviously, ये इसके these are the wings. And this is the center portion of the ceiling fan. और बेटा ये भी हमारे पास विंग्स हैं. ठीक है ना. सो अगेन ये एक हमारे पास सीलिंग फैन का पोर्शन उन्होंने बना के दे दिया यहाँ पर. एंड दे आर आस्किंग यू द फैन कंसिस्ट ऑफ 3 आइडेंटिकल सेक्शंस कॉन्ग्रुएंट टू ओ ए बी सी डी ओ. अच्छा, तीनों आइडेंटिकल सेक्शंस हैं. देखो यानी ये जो फैंस के विंग्स हैं ये तीनों के तीनों आइडेंटिकल हैं. मतलब ठीक है. OABO is a sector of the circle with center O and radius 9. देखो बेटा यहां पर they are telling you OABO. OA, then B, then O. Now this is the sector of the circle which has a radius 9. So this part of the portion is 9 over here. बेटा ये 9 है हमारे पास. This is 9. Right? उसके बाद they are telling you OBCDO is a sector of the circle with center O and radius 84 centimeter. OBCDO. OBC D, उसके बाद O. और दिस होल ग्रीन सेक्शन इज अ सेक्टर और इसका रेडियस बेटा हमारे पास 84 है. ये लिख लेता हूं. एंगल AOD is 2 pi by 3 radians. Now this angle over here, this is 2 pi by 3 radians. ये पूरा एंगल बेटा हमारे पास 2 pi by 3 radians. ठीक है जी. Then they are asking, given that the length of the arc AB is 15 centimeter. अब देखो बेटा यहां पर AB arc की लेंथ, this length over here is 15 centimeter. Right? Show that the length of the arc CD is 35.9 to 1 decimal place. कह रहा CD की आर्क निकाल के दिखा दो. This arc over here, you need to find out this arc. कह रहा ये आर्क निकाल के दिखा दो and should be 35.9. ठीक है. To find out the arc length, the formula is S equal to R theta. Formula क्या बेटा? S is equals to R theta. Said okay. This is the formula. S equal to R theta. What is R? Sir, R is 84 centimeter. This is the value of R. अगर मुझे CD R की R length मालूम करनी है तो बेटा we are going to take this whole sector, the whole green sector over here. The length of the OC is 84. Radius हमारे पास 84 हो जाएगा. It means we know the radius, but we don't know the value of theta. In order to find out the value of theta, हमने करा क्या? देखो हमने यहां पर करा क्या? Now this whole section is 2 pi by 3. We don't know this angle. हमें यही मालूम करना है. This is the angle that we don't want to know. ये वो एंगल है जो मुझे चाहिए अभी. ठीक है सर, ये नहीं पता आपको. So how we are going to find out this angle? We are going to consider the triangle. We are going to consider the sector. हम एक सेक्टर कंसिडर करेंगे अभी. और वो सेक्टर कौन सा होगा बेटा? ये वाला सेक्टर होगा. दिस सेक्टर होगा. देखो ये हमारे पास ये सेक्टर होगा. दिस इज द सेक्टर दैट वी आर गोइंग टू कंसीडर. तो मैं यहां पर लिख रहा हूं AOB सेक्टर में कंसीडर कर रहा हूं. सर आप क्यों कंसीडर कर रहे हैं यहां पर? क्योंकि बेटा S equal to R theta, we know the S value which is 15. The arc length, what is the radius? Radius is 9. इसका radius 9 है हमारे पास. ये जो हमने पर्पल से मार्क करा हुआ था, this is 9. And this is theta. So 15 by 9 is the value of theta, and it
It is in radians. So 15 by 9 कितना हो जाएगा? 3 5 3 3 9. This is the value of theta. Theta radius is the answer. Now that we know the value of this angle, which is 5/3, and we know the value of this whole angle, which is 2 pi by 3. तो बेटा this theta is going to be, ये जो थीटा बेटा निकल कर आएगा, ये क्या निकल कर आएगा? This whole angle 2 pi by 3 minus 5/3 है. पूरे एंगल में से 5/3 माइनस करा दिया. So 2 pi minus 5/3 हमारे पास बेटा थीटा निकल कर आ जाएगा. Now that we know the theta, we are going to apply the formula S equal to R theta. और R की वैल्यू बेटा मेरे पास आ जाएगी 84, एंड थीटा की कमी थी 2 pi minus 5/3. Now what I'm going to do, I'm going to apply this using the calculator. Let's put in the calculator. 84 multiplied by 2 pi minus 5/3. So it is going to be 35.93. You have to get the answer into one decimal place. S बराबर होगा 35.9 centimeter. This is going to be our proof of the very first question. इसमें बोला हुआ CD की लेंथ हमारे पास 35.9 चाहिए. देखो बेटे, the face of the fan is modeled as a flat surface. Obviously थोड़ा कर्व होता है, ये थोड़ा बोल्ड होता है 3D शेप में. देखो तो ये भी कह रहा है 3D शेप में देखेंगे, समझिए फ्लैट सरफेस है आपके पास, ये सारी फ्लैट सरफेस है, पूरी फ्लैट सरफेस है. ठीक है. They're saying find according to the model the perimeter of the face of the fan, giving you answer to the nearest centimeter. Perimeter of the face of the fan हमें मालूम करना है. इस पेरीमीटर में बेटा हमारे पास क्या क्या शामिल है, व्हाट इज इंक्लूडेड. तो मैं इस डायग्राम को थोड़ी देर के लिए, ऑब्वियसली इसको मैं थोड़ी देर के साइड पे कर रहा हूं ताकि मैं पेरीमीटर आपको दिखा सकूं मैं किसको पेरीमीटर कह रहा हूं. तो बेटा पेरीमीटर में वी आर गोइंग टू हैव द CD लेंथ. सर आपने मालूम कर लिया, द सेम लेंथ इज ऑफ गोइंग टू बी, बेटा इसकी भी सेम लेंथ होगी और इसकी भी वही लेंथ होगी. ठीक है सर. What is the length of AB? Said is 15, already given in the question. What is the length of this? Sir, these are congruent. तो बेटा इसकी भी लेंथ वही होगी 15 15 15. तो देखो, we know this length 35.9. We know this length 35.9. We know this length 35.9. We know this length 15. We know this length 15. We know this length 15. ठीक है. अच्छा सर, what is the length of this? इसकी लेंथ क्या है? देखो बेटा सेंटर तक इट इज 84. अगर मैं C से लेकर O तक की लेंथ देखो ना, दिस इज 84. बट ऑब्वियसली हमारा फैन में ये पोर्शन शामिल नहीं है, ये पोर्शन शामिल नहीं है फैन का. फैन का तो विंग यहां से स्टार्ट हो रहा है, पेरीमीटर यहां से देखा जाएगा. दिस इज योर पेरीमीटर. मैं इसको मेंशन कर रहा हूं यहां पर. दिस इज द पार्ट ऑफ द पेरीमीटर. दिस इज द पार्ट ऑफ द पेरीमीटर. ये पूरी रेड लाइन हमारे पास पार्ट ऑफ द पेरीमीटर नहीं है. दिस इज द पार्ट ऑफ द पेरीमीटर. ठीक है ना. अब देखो ये पूरा 84 है, एंड यू नो दिस कि बेटा अभी हम लोग ने पढ़ा था ये OA की लेंथ 9 है, OB की लेंथ भी 9 ही होगी. So if I want to find out this just purple part length, मैं सिर्फ इसकी लेंथ मालूम करना चाह रहा हूं, तो I'm going to find 84 minus 9, which is going to be 75 centimeter. So this is also 75, 75, 75, 75, 75. So what is the full parameter of this? What should be the perimeter? Perimeter बेटा हमारे पास क्या होगा? This 35, 3 times 35.9. This 3 times 15. And then 3 times
sorry, not 3 times, 1 2 3 4 5 6, 6 times 75. Once I got all of these values, I'll have the parameter. I'm just going to calculate it now. 3 times 35.9 plus 3 times 15 plus 6 times 75. So I got 602.7. Now, since they are asking you, giving you answer to the nearest centimeter means the last, we have to give the answer in the whole number. So it is going to become 603 centimeter. Check it out. So this is going to be your perimeter. I'm just going to copy down the answer part. Let's say the surface area of the fan, surface area of the face of the fan, giving an answer to 3 significant figures and make your units clear. तो surface area में बेटा आपके पास obviously this whole thing, this whole wing thing, ये आपके पास पूरा surface area आ जाएगा और इस सर्कल का एरिया आपके पास निकल कर आ जाएगा. थिंग इज कि आपको अगर ये सरफेस एरिया निकालना है, सो it is basically dependent on sectors. It is up to you how do you see this whole shape. मैं इसको इस समय देख रहा हूं. लेट्स से मैं जरा सा इसको थोड़ी देख लिए, इसको भी मूव कर आउट कर लेता हूं. लेट्स से कि मैं इसको कुछ इस तरह देखता हूं कि दिस इज द सेक्टर ऑफ रेडियस 84 and angle over here is, which we calculated in the previous, 2 pi minus 5 upon 3. मैं यहां पर लिख देता हूं 2 pi minus 5 upon 3. अच्छा, सबका यही होगा फिर हमारे पास. This is also going to be same. This is also going to be same. उसके बाद बेटा आपके पास this is the sector of radius 9. अच्छा, यहां पर एंगल क्या आ रहा है? 5/3 आ रहा था. तो इस तरह की बेटा हमारे पास 3 सेक्टर्स बन रहे हैं. This whole is going to be the same sector. सही ना, ये सारे सेम सेक्टर्स हैं. तो आप किसी एक सेक्टर का एरिया निकालोगे, सबको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे. तो लेट्स से अगर मैं इस सेक्टर का एरिया निकाल रहा हूं, लेट्स से मैं सेक्टर का एरिया निकाल रहा हूं, तो r स्क्वायर थीटा बाय 2, the r is 84 square theta 2 pi minus 5 upon 3 of that. 2 of that. So the same thing I'm going to put in the calculator. Calculator में रखेंगे. अच्छा, we know this के obviously 3 हमारे पास सेक्टर्स हैं, तो आप कैलकुलेटर में जो आंसर है ना उसको 3 से मल्टीप्लाई करा दो डायरेक्टली, ताकि एग्जैक्ट वैल्यू आए आपके पास. तो 84 स्क्वायर इंटू 2 pi minus 5 upon जो भी आंसर आता है उसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें. तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 4527.0. You have to get the answer into 3 सिंपल करना, तो 2 डेसिमल पे. चलो हम आगे ही चलिए. सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया हमारे पास इसका आंसर. अच्छा, the thing is कि you got the answer of 3 of the sectors here now. अब देखो बेटा आपके पास इन छोटे सेक्टर्स का एरिया निकालना हूं. So what is the area? R square theta by 2. What is the radius? 9. Theta is 5/3 upon 2. Whatever the answer is, just multiply that value with the 3.
Get the answer 202.5. ठीक है जी. So once you got these answers, just add up all these areas. मतलब 45.27.07 plus 202.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. उसने बोला यूनिट का आपने ख्याल रखना है. 4527.07. The answer is 4729.57 centimeter square. Once you got this, आपको obviously answer देना है 3 single figure में. The very first single figure is 4, second is 7, third is 2. तो 4730 centimeter square आपका आंसर आ रहा है. ठीक है जी. So this is going to be the answer. इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ आंसर स्पेस में. अच्छा बेटा, we have this question in which it says we have the graph of y equal to sin x and they have given the graph of y equal to sin x. और ये जो sin x का ग्राफ दिया हुआ है ना, देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ में I told you people the coefficient of the angle represent the number of cycles within 360. Number of cycles within 360. यानी देखो यहाँ पर ये y equal to sin x लिखा हुआ है. Over here it is y equal to sin x. तो x which is the angle, it has a coefficient 1. तो within 360 1 साइकिल है. तो इसका मतलब ये देखो, ये जो एक साइकिल बनी हुई है साइन की, है within 360 बनी हुई है. इट मींस आई कैन राइट इट लाइक दिस, कि मैं इसको लिख सकता हूं कि ये यहां पर 360 एंगल बन रहा होगा, यहां पर ऑब्वियसली 180 बन रहा होगा क्योंकि 180 पे 0 होगा. ये होगा -180 और ये होगा -360. क्योंकि एक साइकिल ये बन रही है ना, देखो ये पूरी साइकिल है साइन की. तो sin x रिप्रेजेंट sin 1x रिप्रेजेंट 1 साइकिल विद इन 360. तो देखो विद इन 360 देखो एक साइकिल बनी है, इसलिए बेटा मैंने इनको लेबल करा 180 360. ये -120 -360 हो गया. अच्छा देखो, अब ये आपसे जो बात कर रहा है वो बात क्या कर रहा है. दे आर सेइंग sin अल्फा इज इक्वल टू p. मैंने पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग देख ली ग्राफ की, और फिर ये कह रहा है sin अल्फा बराबर है p के. अल्फा इज एन एक्यूट एंगल व्हिच इज ऑलरेडी मेंशन हियर. अल्फा एक एक्यूट एंगल है 0 से लेकर 90 के दरमियान है. लेट्स से अल्फा 60 30 20 10 80 कुछ भी हो सकता है. ठीक है ना. तो देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक मेथड मैं भी यहां पर करवा रहा हूं. देयर आर टू वेज टू सॉल्व दिस. ये मेथड 1 के लिए आप इस सवाल को सॉल्व करने का, पार्ट ए को, फॉर जस्ट पार्ट ए. इसको आप इस तरह करें सॉल्व कि देखो जब वो कह रहा है साइन अल्फा बराबर है पी के, इसका मतलब अल्फा इज एन एक्यूट एंगल. तो अल्फा आपको पता है यहां पर 90 डिग्री होगा, साइन 90 इज 1. तो ये ऑब्वियसली यहां पर ये 90 डिग्री होगा. सो अल्फा इज बिटवीन दीस. दिस इज द पोर्शन वेयर अल्फा एग्जिस्ट बिटवीन 0 till 90. अगर आपको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग पता है, यू मस्ट नो दिस कि बेटा ये हाईएस्ट पॉइंट पर यहां पर 90 डिग्री बन रहा होगा साइन एक्स के ग्राफ में. यहां पर ये 270 बन रहा होगा. तो लेट्स से अगर आपको ये पता चल गया कि यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो अल्फा इज गोइंग टू एग्जिस्ट बिटवीन दिस पोर्शन. ये अल्फा होगा यहां पर, ये एंगल अल्फा होगा. ठीक है ना. तो मैंने बोला लेट्स से द अल्फा ओवर हियर इज लाइक दिस. ये अल्फा यहां पर, ये मैंने अल्फा बनाया ये, और इधर इसकी वैल्यू बेटा हमारे पास बन रही है p. सो ओवर हियर द वैल्यू इज p. यानी ये जो पॉइंट हमारे पास बन रहा है, इधर x इज द एंगल अल्फा और वैल्यू इसकी p आ रही है. जिस तरह यहां पर 180,0 ये पॉइंट है ना. तो साइन अल्फा यानी x की जगह आप अल्फा पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, p आएगी. दिस इज द वैल्यू ऑफ p. अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि बेटा मैंने किस तरह इसको प्लॉट करा है, इसको p का है, तो देखो बेटा आप यहां पर जरा वी आर गोइंग टू स्टडी दिस पोर्शन वेयर इट सेज sin अल्फा माइनस p. जरा इसको हमें स्टडी करना है. 180 माइनस अल्फा, साइन 180 माइनस अल्फा. सो साइन 180 माइनस अल्फा कहां एग्जिस्ट करेगा. तो देखो ये 180 माइनस अल्फा इस पोर्शन में कहां एग्जिस्ट करेगा, यहां पर कहां एग्जिस्ट करेगा 180 माइनस अल्फा. देखो अल्फा यहां पर एग्जिस्ट कर रहा है. लेट्स से मैंने अल्फा यहां पर कह दिया ना 0 से लेकर 90 के दरमियान. मैंने 0 से लेकर 90 के दरमियान यहां पर अल्फा कह दिया. दिस इज अल्फा. यहां से यहां तक ये अल्फा है.
तो 180 माइनस अल्फा कहां होगा? तो देखो मैं गया पूरा 180, फिर इसने बोला माइनस अल्फा, तो जितना ये डिस्टेंस है मैंने उतना माइनस करा दिया यहां पर, यानी मैं पीछे की तरफ आ गया। पहले मैं गया 180, 180 के बाद माइनस अल्फा का मतलब है पीछे आ जाऊं अल्फा, जितना अल्फा का मैग्नीट्यूड है उतना पीछे आ जाऊं। तो दिस पोर्शन ओवर हियर, देखो मैं इसको कॉपी कर रहा हूं, सिर्फ एरो कॉपी कर रहा हूं। आप देखो मैं पहले गया, देखो यहां से मूव करा, ये पूरा 180 हुआ, उसके बाद जितना अल्फा था उतना ही पीछे आ गया। तो दिस पोर्शन ओवर हियर रिप्रेजेंट, देखो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है 180 माइनस अल्फा। दिस पॉइंट ओवर हियर, ये जो पॉइंट है बेटा यहां पर, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा 180 माइनस अल्फा, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा। तो आप देखो साइन 180 माइनस अल्फा भी जब मैं इस पर इंटरसेक्ट करता हूं, तो ग्राफ इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू विच इज पी। तो साइन 180 माइनस अल्फा की वैल्यू भी बेटा मेरे पास क्या आ रही है? पी ही आ रही है। सो आई विल राइट पी ओवर हियर। देखो हमारे पास 2 साइन 180 माइनस अल्फा की वैल्यू 2p आ गई। तो दिस होल वाज 180, 180 में से दिस पोर्शन रिप्रेजेंट द अल्फा मैग्नीट्यूड। अल्फा इज द मैग्नीट्यूड ना, एक एक्यूट एंगल है, जैसे कि 30 डिग्री है, तो 180 तक गया, 180 में 30 डिग्री माइनस कर दिया तो 150 समझ लो इसे। तो दिस विल, द आउटपुट इज गोइंग टू गिव मी द सेम वैल्यू, यहां पर जो इंटरसेक्ट कर रहा है इसको, इट इज गोइंग टू गिव मी द सेम वैल्यू विच इज p। तो sin 180 माइनस अल्फा की वैल्यू p आ गई, multiplying with the 2 it becomes 2p over here. Now the second part, which is alpha minus 180. What is alpha minus 180? अब देखो alpha minus 180 को जरा रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। लेट्स कॉपी डाउन दिस alpha एरो, मैं इसको जरा कॉपी कर रहा हूं ताकि इससे बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, दिस इज alpha ओवर हियर, इसमें 180 माइनस करता हूं। देखो अगर मैं जीरो पे खड़ा हूं, लेट्स से आई एम ओवर हियर, मैं आपसे बोलता हूं 0 माइनस 180, तो आप बोलोगे सर माइनस 180, यू आर गोइंग टू मूव इट बैकवर्ड, मैं माइनस 180 पे आ जाऊंगा। अगर बेटा मैं यहां पर हूं, मैं थोड़ा सा आगे हूं, और मैं अल्फा में 180 माइनस करूंगा, तो देखो इट इज समवेयर गोइंग टू बी लाइक दिस। यहां पर होगा बेटा हमारे पास, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द पोर्शन अल्फा माइनस 180। अल्फा में 180 माइनस करा रहा हूं, दिस पोर्शन, दिस ओवर हियर रिप्रेजेंट 180 मैग्नीट्यूड, ये 180 रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं आगे चले गया तो दिस पोर्शन रिप्रेजेंट 180, ये देखो ये पूरा 180 मैग्नीट्यूड है हमारे पास एंगल का। तो अल्फा में अगर 180 माइनस कराता हूं, दिस इज अल्फा, अल्फा के बाद माइनस 180, तो बेटा आई एम गोइंग टू शिफ्ट ओवर हियर, मैं यहां पर शिफ्ट हो जाऊंगा। ये पोर्शन बेटा हमारे पास साइकिल आएगा, ये पॉइंट हमारे पास साइकिल आएगा 180 माइनस अल्फा। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन दिस एंगल 180 माइनस अल्फा। इस पोर्शन पर, द पोर्शन ओवर हियर, आप देखो इस पे वैल्यू किस तरह बनेगी। देखो बेटा जब आप यहां पर आ गए हो 180 माइनस अल्फा पर, तो ग्राफ अब आपका एरो ऊपर नहीं, आपका ग्राफ नीचे बन रहा है। तो देखो मैंने ग्राफ को नीचे की तरफ एरो करा, देखो ये डिस्टेंस p है, दिस डिस्टेंस इज p, देखो जितना एरो का ये लेंथ है ना, ये डिस्टेंस हमारे पास p है, तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी p, बट क्योंकि वो नीचे की तरफ है, सो इट इज गोइंग टू बी माइनस p देन। तो साइन 180 माइनस p पर, साइन 180 माइनस अल्फा पर, 180 माइनस अल्फा पर, साइन के फंक्शन में 180 माइनस अल्फा पर, व्हाट वैल्यू आई एम गेटिंग? माइनस p। तो बेटा यहां पर आपके पास दिस वैल्यू ओवर हियर, साइन 180 अल्फा माइनस 180 इज गोइंग टू बी माइनस p है। क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? माइनस p हो जाएगा। यानी आपने अल्फा में 180 माइनस करवाया, यू आर एट दिस पॉइंट, ये 180 माइनस अल्फा है, 180 माइनस अल्फा पे साइन के फंक्शन पे गए, सर साइन के फंक्शन पे ये पॉइंट बन रहा है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट? तो भाई जितना ये हमारे पास एरो था उतना यही एरो होगा। तो बेटा ये हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है? माइनस p होगी ना, ऊपर p था, इस डिस्टेंस को हम p कह रहे हैं,
तो ये डिस्टेंस भी p है, डिस्टेंस तो p है, लेकिन बेटा क्योंकि मैं पॉइंट को लोकेट कर रहा हूं नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस पर है, तो बेटा दिस गोइंग टू बी माइनस p है। और इसको p इन्होंने बोला है, मैंने नहीं बोला, ये देखो इस इतनी लेंथ को p ये लोग कह रहे हैं, तो उसी लेंथ को बेटा मैंने पीछे कर दिया, यहां पर ये 180 माइनस अल्फा हो गया, देखो सॉरी दिस इज अल्फा माइनस 180, मैंने यहां पर दिस इज अल्फा माइनस 180, तो बेटा ये हमारे पास ये जो लेंथ आ गई दिस इज गोइंग टू बी माइनस p, तो साइन अल्फा माइनस 180 इज गोइंग टू बी माइनस p, दिस इज अल्फा माइनस 180। अगेन अब देखो यहां पर लिखा हुआ है साइन 180 प्लस अल्फा, आप देखो आप अभी अल्फा पर हो, अब आप 180 मैग्नीट्यूड आगे जा रहे हो, अल्फा में 180 ऐड कर रहे हो, सो दिस मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट 180, ये देखो ये मैं 180 ऐड कर लिया, देखो मैं आगे चले गया, दिस इज द पॉइंट जो 180 प्लस अल्फा है, या अल्फा प्लस 180 कह लो या 180 प्लस अल्फा बोल दो, दिस इज अ पॉइंट विच इज कॉल्ड 180 प्लस अल्फा बोल दो या अल्फा प्लस 180 बोल दो, बात एक ही। अब व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू मार्क द पॉइंट। अब देखो ये जो वैल्यू आ रही है बिल्कुल सेम वही आ रही है जो यहां पर लिखी हुई है, माइनस पी, तो साइन 180 प्लस अल्फा बेटा ये भी आपको क्या दे रहा है, माइनस पी दे रहा है, तो सिंस पहले 3 लिखा हुआ है, मैंने 3 को कॉपी करा, प्लस द वैल्यू ऑफ साइन 180 प्लस अल्फा इज माइनस पी, द आंसर इज 3 माइनस पी, यहां पर निकल कर आ गया। So this is how going to find out the value of this a part with the help of the graph. ग्राफ में से आपने p देख लिया, ये बस एक चीज सपोज करनी है, अल्फा पे p वैल्यू आ रही है, बाकी सारी वैल्यू इसी के रिस्पेक्ट से मैं निकाल दूंगा। So this method, this the same for the same question, this method number 2, when it says sin alpha बराबर है p के, alpha is an acute angle, तो मैंने अल्फा की जगह कोई एक्यूट एंगल सपोज कर लिया, इसका मतलब साइन 60, अल्फा की जगह में 60 सपोज कर लिया लेट्स से। अब देखो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टीज, वैसे तो साइन अल्फा बराबर है पी के, लेकिन अभी अल्फा जब मैंने 60 सपोज कर लिया, तो देखो मैंने यहां पर निकाला साइन 60 बराबर है √3/2 के, इसके बराबर है √3/2 के, यहां पर क्या था, पी था, साइन अल्फा बराबर है पी के, जब मैंने अल्फा को 60 सपोज कर लिया तो साइन 60 बराबर है √3/2 के, मैंने इस तरह बात कर ली, अल्फा की जगह 60 और पी की वैल्यू √3/2 आ गई, पी की जगह √3/2 कर लिया, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। मैं आपसे बोलता हूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 180 माइनस अल्फा, तो आप बोलोगे सर आप बेसिकली निकालना चाह रहे हैं साइन 180 माइनस 60 की वैल्यू, यानी साइन 120 की वैल्यू, कैलकुलेटर में जाकर निकालें, साइन 120 की वैल्यू क्या आ रही है, √3/2 आ रही है। सो यू विल नो दिस कि साइन 60 की वैल्यू और साइन 120, या यूं कह लो साइन 180 माइनस अल्फा की वैल्यू √3/2 ही आ रही है, यानी साइन अल्फा की वैल्यू भी √3/2 है और साइन 180 माइनस अल्फा की वैल्यू √3/2 है, साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है, साइन 180 माइनस अल्फा की वैल्यू भी √3/2 आ रही है, तो इसका मतलब p की फॉर्म में अगर हम बात करें तो साइन अल्फा की वैल्यू p है, साइन 180 माइनस अल्फा की वैल्यू भी क्या होगी, p ही रहेगी, सो यू कैन राइट 2 into p है, 2 इसकी वजह से लिख रहा हूं, और साइन 180 माइनस अल्फा की जगह, साइन 180 माइनस अल्फा की जगह आई एम राइटिंग p, दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। अच्छा सर देखिए साइन अल्फा यानी 60 की वैल्यू √3/2 है, फिर से करते हैं सर, अगर मैं कहूं साइन अल्फा माइनस 180 जिस तरह यहां पर लिखा हुआ है, अल्फा माइनस 180 का मतलब है सर, इसका मतलब यू आर आस्किंग साइन 60 माइनस 180, साइन 60 माइनस 180 साइन माइनस 120, जस्ट राइट इट डाउन। आप वैसे कैलकुलेटर में एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, वी नो दिस के साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो साइन माइनस 120 इज इक्वल टू माइनस साइन 120, बात एक ही है,
तो साइन 120 का आंसर कितना आ रहा था, अभी आपने निकाल चुके हो, √3/2 आ रहा था, और ये माइनस मैंने एवरेज कॉपी कर लिया। तो सर पता क्या चला, पता ये चला कि साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, और साइन 60 माइनस 180 की वैल्यू -√3/2 है। यानी फर्क सिर्फ साइन का है, मैग्नीट्यूड का नहीं है, मैग्नीट्यूड सेम है। यानी जो साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है, अल्फा 60 है, साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है, तो साइन अल्फा -180 की वैल्यू -√3/2 है। साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है, साइन अल्फा -180 की वैल्यू -√3/2 है। तो बेटा अगर मैं बोलूं साइन अल्फा की वैल्यू p है, तो साइन अल्फा -180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी सेम, बट साइन चेंज हो जाएगा, -p हो जाएगा। सिमिलरली फॉर द थर्ड पार्ट, मैंने बोला साइन 60 के लिए √3/2 है, अगेन साइन 60 के लिए √3/2 है। साइन 180 प्लस अल्फा, यानी साइन 180 प्लस 60 की वैल्यू, मैंने यहां से 180 प्लस अल्फा लिया। सर इसे साइन 240 बन रहा है, सर साइन 240 कैलकुलेटर में आ रहा है -√3/2, क्या आ रहा है -√3/2। यानी साइन 60 की वैल्यू साइन अल्फा की वैल्यू √3/2 है, साइन 240 की वैल्यू यानी साइन 180 प्लस अल्फा की वैल्यू -√3/2 है, साइन अल्फा की वैल्यू √3/2, साइन 180 प्लस अल्फा की वैल्यू -√3/2, साइन अल्फा की वैल्यू √3/2, साइन 180 प्लस अल्फा की वैल्यू -√3/2। फर्क सिर्फ साइन का है, मैग्नीट्यूड का नहीं है। तो साइन अल्फा की वैल्यू p, साइन 180 प्लस अल्फा की वैल्यू -p हो जाएगी। देखो ये आंसर आ रहा है इसका 3 - p। दोनों के आंसर देखो ऊपर से भी सेम आंसर ही आ रहे हैं, 2p - p 3 - p, 2p - p 3 - p। सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ सपोजिशन, कि आप कोई भी अल्फा सपोज करके आप अपनी केस सिनेरियो वही बना लो जो यहां पर बन रहा है, और आप मैच कर लो कि कौन सी प्रॉपर्टी आपके साथ मैचअप कर रही है। ओके, फॉर द सेम क्वेश्चन दे आर आस्किंग यू स्केच द ग्राफ ऑफ y = sin 2x। तो जैसे मैंने आपको बताया था, दिस 2 रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ साइकिल विद इन 360। अब ग्राफ जिसने बना हुआ था sin x का, दिस ग्राफ ओवर हियर, यहां पर बेटा 360 पर एक साइकिल बन रही थी पहले। जैसे ही मैंने sin 2x लिखा, तो देखो विद इन 360 आई एम गोना हैव 2 साइकिल्स हियर। एक साइकिल 180 पर, फिर दूसरी साइकिल दूसरी 180 पर, एक साइकिल 180 पर, फिर दूसरी साइकिल 180 पर। स्केच करना था, दैट्स इट। ये आपका ग्राफ हो गया। तो साइन 2x मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट पार्ट को आप ट्रांसफॉर्मेशन के रिस्पेक्ट से देखें। कह रहे हैं hence find in terms of alpha the x coordinate of any points on the interval from 0 to 180 where sin 2x is p। sin 2x की वैल्यू क्या है? p है। अब देखो आपके पास, वैसे देखा जाए ग्राफ में, अगर मैं लास्ट ग्राफ की बात करूं, तो मैंने लास्ट ग्राफ में जैसे मैंने इधर p बना लिया था, लेट से मैंने p बना लिया था, ठीक है ना। तो बेटा आपके पास sin 2x में p 2 पॉइंट्स में बन रहा है। एक ये पॉइंट है, वन इज दिस पॉइंट एंड सेकंड वन इज दिस पॉइंट। इन दोनों पर आपके पास sin 2x की वैल्यू p है। भाई ये पूरा sin 2x का ग्राफ है ना, इस पर p वैल्यू कब बन रही है? विद इन 180, 180 तक मैं बात कर रहा हूं, विद इन 180, 0 से लेकर 180 तक, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, आगे नहीं जा रहा मैं। सो विद इन 180, लेट से मैंने इसको p कहा था मैंने पिछले पार्ट में, तो भाई ये p वैल्यू 2 पॉइंट्स पे बन रही है। अच्छा सर ये तो आपने विजुअलाइजेशन में बता दी कि 2 पॉइंट्स पे p की वैल्यू आ रही है। अब ये दो एंगल्स हमें निकालने हैं, बेसिकली ये दो एंगल्स निकालने हैं मुझे। मुझे करना कुछ भी नहीं है, मुझे ये दो एंगल्स निकालने हैं। ये वाला एंगल, इधर एंगल की वैल्यू क्या है और इधर एंगल की वैल्यू क्या है, मुझे ये दो एंगल्स निकालने हैं। व्हाट आर दीस टू एंगल्स? तो देखो बेटा, सिंस आपके पास साइन अल्फा पर p आ रहा है और साइन 2x पर भी p वैल्यू है, द y वैल्यू सेम।
आपके पास बस ये अल्फा की जगह 2x हो गया, यानी पहले जो साइन एक्स का ग्राफ था या साइन अल्फा का ग्राफ कह लो, साइन अल्फा पे हमारे पास वैल्यू पी आ रही है, उन्हें एक्स की जगह पी रख दिया ना, यहां पर जो हमारा ग्राफ था साइन एक्स, इन्होंने अल्फा की जगह एक्स की जगह अल्फा लिख दिया, उस पर वैल्यू पी आ रही है। तो कहने का मकसद बेटा यहां पर यह है कि इस पूरे साइन एक्स वाले फंक्शन से अगर आप साइन 2x में शिफ्ट होते हो तो बेसिकली दिस इज दी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग। आप x रिप्लेस हो रहा है 2x से, यहां पर x रिप्लेस किससे हो रहा है, 2x से रिप्लेस हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग, यानी ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रेचिंग हो रही है। इधर स्ट्रेच फैक्टर 1/2 हो जाएगा, x रिप्लेस हो रहा है 2x से, तो स्ट्रेच फैक्टर बेटा ये 2 नहीं रहेगा, स्ट्रेच फैक्टर 1/2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। यानी पहले पहले अल्फा पर x की वैल्यू, अल्फा पर p आ रही थी वैल्यू, ये साइन एक्स के ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं, y की वैल्यू क्या आ रही थी, p आ रही थी। अगर साइन 2x का ग्राफ है, इस पर y की वैल्यू कब आएगी, y की वैल्यू p कब आएगी, जब x 2x हो गया, तो बेटा आपके पास जो x की वैल्यू होती है उसको आप अपने स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करा देते हो, स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करा दिया, यानी अल्फा बाई 2 पर यू विल गेट द वैल्यू p हियर इन साइन 2x ग्राफ। तो x की वैल्यू इज अल्फा बाई 2, जहां पर बेटा साइन 2x पर वैल्यू क्या आएगी, p आएगी। नाउ दिस इज दी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग, आपने स्केल फैक्टर 1/2 से अपनी x की वैल्यू को मल्टीप्लाई करा दिया, आपका ग्राफ था साइन एक्स का, जब ग्राफ साइन 2x हो गया तो दे आर सेइंग y की वैल्यू चेंज नहीं हुई, y की वैल्यू सेम रही, सेम y की वैल्यू है, और ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग हो गई। तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग में बेटा आपके पास y की वैल्यू तो सेम रहती है, उन्होंने बिल्कुल ठीक करा, y की वैल्यू सेम रखी है उन्होंने, बस यहां पर x की जगह 2x लिख दिया, तो इसका मतलब बेटा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग आपका स्केल फैक्टर 1/2 हो जाएगा। आपकी पहले x की वैल्यू पर अल्फा पर हमारे पास p आ रहा था, अब अल्फा की वैल्यू डिवाइड बाय 2 यानी मतलब 1/2 हो जाएगा स्केल फैक्टर, अब अल्फा बाय 2 पर बेटा p वैल्यू आएगी sin 2x में। So this is one of the answer of this part. ठीक है, अच्छा अब आपने ये देखा, आपने बोला कि भाई साइन 2x के ग्राफ में ये p की वैल्यू कब आ रही है, जब अल्फा है, अल्फा जब थीटा x है अल्फा बाई 2। आपने ये बात चेक करी है ना बेटा, अभी आपने खुद ऊपर प्रूफ करी है बात, साइन अल्फा पे जो आंसर आ रहा है साइन 180 माइनस अल्फा पे सेम आंसर आएगा, यानी अगर साइन अल्फा पे p है तो 180 माइनस अल्फा पे भी p होगा। अभी हमने ऊपर बात प्रूफ करी है, बात ऊपर अभी हमने फर्स्ट पार्ट में बात प्रूफ करी है। तो देखो आपके पास पहले x की वैल्यू थी अल्फा, अब अगर आपके पास x की वैल्यू 180 माइनस अल्फा है, उस पर भी तो p आ रहा है, इस पे भी तो आंसर p आएगा ना साइन 2x में। तो बेटा अभी आपने जब ये बात प्रूफ करी तो इसको भी स्केल फैक्टर 1/2 से मिला कराओ। नाउ दिस इज दी आल्सो एंगल जो विद इन 180 है हमारे पास, तो साइन 2x में बेटा आप इसका भी स्केल फैक्टर 2 है, स्केल फैक्टर 1/2 है, तो बेटा यहां पर भी आप 1/2 से मिला कराओगे, 180 माइनस अल्फा अपॉन 2, इस पे अगेन वैल्यू क्या आ रही है, p आ रही है। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, नहीं करो कोई मसला वाली बात नहीं है, ये 180 अपॉन 2 90 हो जाएगा माइनस अल्फा बाय 2। तो बेटा दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये दो आंसर है विद इन 180 जिन पे बेटा हमारे पास p की वैल्यू एक्सेस कर रही है। ठीक है ना, पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन का रूल अप्लाई करा, x की जगह अल्फा लिखा हुआ था,
मैंने बोला साइन एक्स में पी वैल्यू कब आ रही है, अल्फा पर आ रही है, तो 2x पर कब आएगी, अल्फा बाई 2 पर आएगी पी की वैल्यू। ठीक है भाई, देन यू नो दिस कि भाई साइन अल्फा पे पी होता है, साइन मल्टी माइनस अल्फा पे पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा हमारे पास, ये हमने अभी ऊपर प्रूफ करा है। तो साइन 2x में क्या हो जाएगा, साइन 2 टाइम्स में क्या हो जाएगा साइन 2x में, तो भाई पहले अगर आपके पास 180 माइनस अल्फा एंगल है तो इसको भी आप बेटा स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करा देंगे 1/2 से, तो बेटा ये जाएगा 90 माइनस अल्फा बाई 2। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर, द सेकंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी एक आंसर आपके पास अल्फा बाई 2 आ रहा है, एक आंसर है 90 माइनस अल्फा बाई 2। एक्स वैल्यू इज अल्फा, तो साइन अल्फा पे पी आ रहा है, तो साइन 180 माइनस अल्फा पे पी आ रहा है। तो अब अगर ग्राफ साइन 2x बन गया है, वैल्यू पी ही रहनी चाहिए, तो हम इन दोनों वैल्यूज को बेटा अपने ट्रांसफॉर्मेशन में हॉरिजॉन्टल स्ट्रेचिंग में स्ट्रेच फैक्टर 1/2 से मिला करा देंगे। इन दोनों एक्स की वैल्यूज को जिस पर एंगल पी बन रहा है, अब साइन 2x पे भी पी बनना चाहिए, तो साइन 2x पे पी कब आएगा, जब ये दोनों एक्स की वैल्यूज स्केल फैक्टर 1/2 से मिला होंगी, तो बेटा इन पे भी हमारे पास पी ही आंसर आएगा साइन 2x में। कह रहे भाई इसका डीवाई निकालो, तो डीवाई इज गोइंग टू बी पावर ऑफ कोएफिशिएंट लग रहा है 3 to the 6/7 x स्क्वायर एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1/7 is 2/7 x minus 5/2 x का 5/2 minus 5/2 रहेगा, और k का कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो गया, सो दिस इज dydx। अच्छा, ये dydx बेसिकली इस पूरे कर्व का ग्रेडियंट रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी भी पॉइंट पर आपको ऐसे भी पॉइंट पुट कर दो, उस पॉइंट में जो टेंजेंट बनेगा या उस पॉइंट का ग्रेडियंट निकाल के दे देगा ये dydx। कह रहा है एक लाइन L है शोन इन द फिगर 5 इज नॉर्मल टू C, यानी कर्व के नॉर्मल है एट पॉइंट A बेटा, इसका मतलब यहां पे टेंजेंट बन रहा होगा दिस पॉइंट ओवर हियर, यहां पे एक टेंजेंट बन रहा है, इस टेंजेंट और नॉर्मल के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये लाइन L यहां पर बनी हुई है, इसने इसका डिस्कस करा हुआ कि भाई ये कह रहा है एट A विद x कोऑर्डिनेट -7/2, तो यहां पर जो A पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट -7/2, given that L is also tangent to C, कह रहा है जो L A पॉइंट पर नॉर्मल बन रहा है, आगे जाकर इसी कर्व पर B पॉइंट पर टेंजेंट बन रहा है। show that the x coordinate of the point B is the solution of this equation, कह रहा है B का x कोऑर्डिनेट आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हो, ये शो करके दिखाओ, यानी इक्वेशन लाके दिखाओ ये, यानी आप ऐसी वर्किंग करें जिससे आप B का x कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, और फिर आप बीच में एक ऐसी सिचुएशन में पहुंचे जहां पर ये इक्वेशन बन रही हो जिससे x की वैल्यू आएगी, तो अब ये सिचुएशन हम कैसे क्रिएट करेंगे कि हमारे पास x वेरिएबल बन जाए। तो मैंने सबसे पहले क्या करा बेटा, ये जो हमारे पास ग्रेडियंट था ना, ये टेंजेंट का ग्रेडियंट है, एट ए पॉइंट में ऊपर ही वर्किंग कर रहा हूं, एट ए जहां पर x की वैल्यू -7/2 है, मैंने ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट निकाला 6/7 x स्क्वायर -7/2 स्क्वायर हो गया, प्लस 2/7 -7/2 और -5/2, ये हो गया -5/2। इफ यू पुट इन द कैलकुलेटर आपके पास आंसर कुछ आएगा, तो दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द दिस टेंजेंट, ये टेंजेंट इस टेंजेंट का ग्रेडियंट आया, नॉर्मल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, वैसे नॉर्मल ग्रेडियंट हो जाएगा -1/7, ठीक है ना। अब नॉर्मल यानी इस लाइन का ग्रेडियंट है, ये जो लाइन बेटा हमारे पास L जा रही है इसका ग्रेडियंट है -1/7। अब एट पॉइंट बी, बेटा एट पॉइंट बी, इस पॉइंट पर जिस लाइन का ग्रेडियंट -1/7 है, अब इस पिछले वाले को छोड़ दो बिल्कुल, इस लाइन का ग्रेडियंट -1/7 है, ये टेंजेंट टू बी है,
तो बेटा बी पर हमारे पास बी का ग्रेडियंट कितना होगा, बी हमारे पास ग्रेडियंट कितना होगा, वो भी यही होगा हमारे पास। तो 6/7 जो यहां पर बेटा एल लाइन का ग्रेडियंट है वो है -1/7, और एल लाइन का ग्रेडियंट बेटा हमारे पास है 6/7 x² + 2/7 x - 5/2. So I'm going to equate these two. So I'm just going to take the LCM. 6x², अच्छा -5/2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ रहा हूँ, that becomes -1/7 + 5/2. So 5 - 1/7 + 5/2 is going to be 33/14. और राइट हैंड साइड पे बेटा एलसीएम लो, 6x² + 2x/7. बेटा 7 1 7, 7 2 14, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, you will get the value 33, which is a 12x² + 2 4x, and then 12x² + 4x - 33 is equal to 0. देखो ये इक्वेशन निकल कर आ गई जो हमें उसने बोली थी, ठीक है। नाउ hence find the exponent of b, justifying your answer. Obviously बेटा x की वैल्यू यहीं से आएगी, दिस इज द प्लेस वेयर जहां से x की वैल्यू आएगी b कोऑर्डिनेट की, क्योंकि यही कंडीशन हम लोग ने फुलफिल करी थी। तो 12x² + 4x - 33 is equal to 0. We are going to make the numerical term या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दें, you will get the value of x, है ना, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कर दें वैल्यू, you will get the value of x. आपके पास दो वैल्यूज आ रही होंगी, which is going to be 3/2 और एक आ रही होगी -11/6. Since b is on पॉजिटिव x एक्सिस, तो b का x कोऑर्डिनेट बेटा हम लोग कौन सा लेंगे, पॉजिटिव 3/2 पिक करेंगे, ठीक है जी। The last thing, find the value of k given that the y-index of L is -1. L का y-index है -1 दे दिया है, सो और कह रहे हैं k की वैल्यू मालूम करके दिखा दो। तो देखो अगर आपके पास यहां पर L का y-index है -1 दे दिया है, तो L लाइन की इक्वेशन तो आपके पास आराम से आ जाएगी, y = mx + c, देखो y = -1/7 x + c, c की वैल्यू -1 है। अब मुझे बताओ कि भाई ये लाइन हमारे पास ए पॉइंट से पास कर रही है, जी सर बिल्कुल कर रही है। ए पॉइंट का एक्सपोनेंट पता है -7/2, तो मैं यहां पर y is equal to -1/7 x -1, मैं यहां पर x की जगह अगर -7/2 पुट करूं, ए कोऑर्डिनेट का बेटा x कोऑर्डिनेट पुट करूं, so I'll get the value of the y coordinate of the a coordinate. तो 7 7 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, 1/2 -1 is -1/2. Now that you have got the value of y value, which is -1/2 of a, you have the whole point of the a coordinate. a coordinate पूरा पता है, इस कर्व का आपको पूरा पॉइंट पता है, इस कर्व की इक्वेशन ये रही आपके सामने जिसमें k मौजूद है। You are going to put the value of x and y here, हम a पॉइंट यहां पर पुट करेंगे, that is -1/2 is equals to 2/7 x square, -7/2 का स्क्वायर, सॉरी -7/2 का क्यूब, प्लस 1/7 -7/2 का होल स्क्वायर, -5/2 -7/2 प्लस के। तो मैं राइट हैंड साइड पर ना सिर्फ पहले इनको सॉल्व कर रहा हूं, सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, कैलकुलेटर में रखकर सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, यानी मैं पहले रख रहा हूं 2/7 इंटू 7/2 होल क्यूब प्लस 1/7
into -7/2, -7/2 था यहाँ पर -7. So -1/2 is equals to -7/4 plus k. So I'm going to shift the -7/4 on the right hand side. I'll get the value -1 divided by 2 plus 7/4. I'll get the value of k, which is 5/4. यहाँ से बेटा आपके पास k की वैल्यू आ रही है 5/4. ये आपके पास फाइनल आंसर इसका निकल कर आ जाएगा.